वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। देखो हमने लास्ट पार्ट में क्या सीखा था। नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर एंड लैंड, इसका पार्ट फर्स्ट सीखा था। अब हमको इसका सेकंड पार्ट सीखना है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप इसे देख लीजिए, जिसके लिए इसका सेकंड पार्ट समझने में आपको आसानी होगी। नाउ लेट अस ऑब्जर्व एंड डिस्कस व्हाट इज द सिमिलैरिटी इन द थ्री पिक्चर्स बिलो। देखो इन फर्स्ट फिगर वी सी that there are the chimneys of from different factories give out the large scale emission of smoke. In second figure there is exertion of gases from various vehicles like buses, car and scooter. And in third figure there is a combustion of fuels like wood and coal, just like it is a forest burn. All the above pictures show large-scale emission of smoke through different agencies. This smoke directly mixes with the atmosphere, disturbing the balance between the constituents of air. This is called air pollution. देखो अब अभी आपने फिगर में देखा है कि देर इज अ लार्ज स्केल इमिशन ऑफ स्मोक। दिस स्मोक मिक्सेस विद द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के एयर में जो भी कॉन्स्टिट्यूंट्स है इनमें ये स्मोक मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से उनका प्रोपोर्शन है कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ एयर का वो इम्बैलेंस हो जाता है और इसे एयर पोल्यूशन कहते हैं। आर हार्मफुल सब्सटेंसेज रिलीज्ड इन एयर थ्रू कंबशन ऑफ फ्यूल्स, nitrogen dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide and soot. Soot means a black smoke. Now the next topic of our part 2 is ozone layer, the protective shell. Ozone. Ozone means O3. O3 ये क्या है, इसकी संज्ञा है। And this gas is in the lower part of stratosphere. ये कहाँ पर रहता है आपको पता है। देखो जो ट्रोपोस्फियर है नियरेस्ट टू द लैंड सरफेस, देन द सेकंड पार्ट उसके ऊपर का होता है जो स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन lies in between these two spheres. Ozone gas is very useful for living things. You know why it is very useful for us? देखो the ultraviolet rays coming from the sun are very harmful for living things, and the ozone gas absorbs these rays. As a result, life on earth is protected. ये ओजोन लेयर क्या काम करता है, सन से जो अल्ट्रा वायोलेट रेज होते हैं जो लिविंग थिंग्स के लिए बहुत हार्मफुल होता है, वो ओजोन लेयर इस गैस को एब्सॉर्ब करता है एंड आवर लाइफ इज प्रोटेक्टेड बाय दिस लेयर, सो इट इज कॉल्ड अ प्रोटेक्टिव शेयर, the protective shell. Okay, the 16th of September is celebrated as ozone protection day all over the world to make everyone aware of the importance of ozone. 16th September ये क्या होता है, ozone protection day होता है. Now the next topic is the water. देखो water is an essential part of our life because all our daily requirements fulfilled by the water. For which purpose the water is used? You know, for bathing, for brushing teeth, for washing clothes and utensils, mopping the floor, for drinking and cooling. देखो आपको ये काउंट करना है कि हम कितना टोटल यूज ऑफ वाटर करते हैं इन आवर डेली लाइफ। ओके, देखो इन नेचर वाटर ऑकर्स इन थ्री स्टेट्स. वाटर डज नॉट हैव कलर, टेस्ट और ऑर्डर. Many substances readily dissolve in water, therefore water is a universal solvent. Many substances like देखो शुगर एंड सॉल्ट होते हैं वो पानी में अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाते हैं, therefore water is a universal solvent. If hydrogen gas burns in air, जब हम हाइड्रोजन गैस को बर्न होता है एयर में तब इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, इसका कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन के साथ में होता है एंड वाटर इज formed, and from this process water is formed. Okay, now look at this figure 1.5 distribution of water on the earth. देखो यहाँ पे एक चार्ट भी दिया है आपको और यहाँ पर एक फिगर भी दी है। उसमें देखो आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ पर जो बड़ा वाला ब्लू वाला पार्ट है occupied by seas and oceans, means there is a large scale proportion of seas and oceans having percentage 97. Then the brown part is occupied by groundwater, ice and water in other forms having percentage 2.7 percentage, and water available for drinking is a very less and very
लेस proportion occupied in distribution of earth, एंड इसका proportion होता है 0.3%. देखो, हमने देखा था अभी कि लैंड एंड वाटर एक ऑक्यूपाइज द अर्थ सरफेस. लैंड का 29 एंड वाटर का 71% है, और उसके 71% में से ग्राउंड वाटर, आइस एंड वाटर इन अदर फॉर्म्स आर 2.7%. वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग इज वेरी मच क्वांटिटी एंड हैविंग proportion 0.3. and water available in seas and oceans having percentage 97. We cannot use all the water on earth because sea water is salty. sea water होता है वो पीने के लिए यूजफुल नहीं है. सो हमारे लिए जो भी प्रोपोर्शन है वाटर का वो बहुत ही लेस है. नाउ लुक एट दिस फिगर 1.6 यूजेस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. देखो यहाँ पर वेरियस यूजेस दिखाई दे रहे हैं. एंड यू नो वाटर वेपर फॉर्म्ड फ्रॉम ओशंस इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन द वाटर साइकिल. क्या होता है, जो ओशन में से जब वो हीट्स की वजह से वाटर वेपर होती है उसका कंडेंसेशन होता है, और उस कंडेंसेशन की वजह से द वाटर रिजल्ट्स इनटू द रेन. So water vapor formed from oceans is the main source of water in the water cycle. So always remember, use water sparingly. वाटर का बहुत कम यूज करो. ब्लॉक वाटर, लेट इट परकोलेट. पानी बचाओ, पानी जतन करो. स्टोर वाटर वेयर एवर पॉसिबल. पानी जब भी पॉसिबल हो तब हर वक्त हमें उसको स्टोर करके रखना है. रीयूज वाटर वेयर एवर पॉसिबल. जब जब पॉसिबल हो तब हम इस पानी का रीयूज कर सकते हैं. रिमेंबर, स्टोर्ड वाटर डज नॉट बिकम स्टेल एट वंस. बचाया हुआ पानी बासी नहीं होता है, तो हमें ये यूजफुल होता ही है. ओके, द लास्ट पार्ट ऑफ आवर टॉपिक एंड पार्ट 2 इज द लास्ट पार्ट इज लैंड. लैंड इज सीन इन द फॉर्म ऑफ स्टोन्स. देखो, लैंड किस फॉर्म में फाउंड होता है अर्थ पर. जस्ट लाइक स्टोन, सॉइल, बिग रॉक्स. इट इज़ नॉट फ्लैट एवरीवेयर. ये हर तरफ हर जगह पर समान एक जैसी नहीं होती है. इट इज़ हिली इन सम प्लेसेस, जैसे कि हिली रीजन, जैसे कि माउंटेन्स, वैलीज. ओके, यू नो. एंड फ्लैट इन अदर्स वेयर इट इज़ फाउंड इन फ्लैट रीजन्स. ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन लिव ऑन लैंड. और हर कोई ह्यूमन बीइंग होता है वो ज़मीन पे ही रहता है, और वो जब एनिमल्स होते हैं लैंड पे रहने वाले, जिनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं, वो भी लैंड पे ही रहते हैं. सम टेरेस्ट्रियल डिग ब्यूरोज इन द ग्राउंड फॉर शेल्टर. देखो, कोई टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ऐसे भी होते हैं कुछ कि वो अपने शेल्टर के लिए ब्यूरोज को डिग करते हैं इन द ग्राउंड. दिस मीन्स दैट दे यूज लैंड फॉर फुलफिलिंग देयर नीड. वी ऑल्सो यूज लैंड फॉर फार्मिंग एंड फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड रोड्स. हम लैंड का कितना हिस्सा यूज करते हैं, देखो, फॉर फार्मिंग, फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड फॉर रोड्स ऑल्सो. We make use of plants and animals in the forests that grow on land. The minerals, crude oil and natural gas obtained from the earth are very important for us. देखो, हमें ज़मीन से निकलने वाले जो भी क्रूड ऑयल होता है वो भी हमारे लिविंग बीइंग के लिए काम आता है. It means that land is an important resource. Let us see exactly what land is made of. Now look at this picture 1.7, layers of the mixture in the bottle. Take a transparent plastic bottle, a handful of soil, some stones, sand, some dry leaves and water. आपको क्या करना है, इन सबको इकट्ठा करना है. Then second procedure, आपको क्या करना है, cut off the upper tapering part of bottle, put the rest of the materials in the lower part and add water. आपको ये सब मिक्स करना है प्लास्टिक की बॉटल में, और ऊपर से आपको पानी डाल देना है. थर्ड प्रोसेस इज दैट स्टिर द मिक्सचर थरली एंड पुट इट असाइड. आपको क्या करना है, इस मिक्सचर को अच्छी तरह से घुल मिलाना है और साइड पे रख देना है. ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे एंड आंसर. हाउ डज द मिक्सचर इन द बॉटल लुक नाउ. अब देखो, आपको दूसरे दिन क्या करना है, इसका ऑब्जर्वेशन करना है कि आपको इस बॉटल में दिखाई क्या देता है. तो आपको दिखाई देता है द बिग स्टोन्स,
that are lower part in this plastic bottle having heavy density. So big stones are found in the lower part of these plastic bottles. Small stones having less density than big stones, so they are found in upper part of the big stones. Okay, स्मॉल स्टोन्स के ऊपर क्या होता है, सैंड होता है, उसके ऊपर सॉइल होती है, उसके ऊपर ड्राई लीव्स होता है, ड्राई लीव्स होते हैं और ड्राई लीव्स की वेरी लो डेंसिटी होती है, इसलिए वो पानी के ऊपर फ्लोट होते हुए दिखाई दे रहे हैं. देखो इस तरह से दिखाया आपने. ओके, इसी फिगर की वजह से हमें दिखाई देता है कि 1.7 ये जो लेयर्स ऑफ द मिक्सचर इन द बॉटल, एक जो फिगर है, ऐसा ही कुछ लैंड का लेयर्स होता है, जैसे कि 1.8 की फिगर में दिखाई दिया है आपको लेयर्स ऑफ लैंड. देखो इसके लोअर पार्ट में क्या है, बेड रॉक, उसके ऊपर है लेयर ऑफ सॉइल एंड स्मॉल रॉक्स, उसके ऊपर है इमेच्योर सॉइल. इमेच्योर सॉइल मीन्स जो अभी भी पूरी तरह से बनी नहीं हुई है, उसे इमेच्योर सॉइल कहते हैं. उसके ऊपर दूसरी सॉइल है एक, उसके ऊपर ह्यूमस है. अब ये ह्यूमस क्या है, देखो कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो, उसका डिके हो जाता है एंड दे रिमेन्स मेनी डेज एंड मेनी मंथ्स एंड मेनी ईयर्स ऑल्सो. सो द डिकम्पोजिशन प्रोसेस इज हैपन एंड डिकम्पोजिशन इज टेक्स प्लेस. यहाँ पे देखो, इफ द लैंड हैज मैच्योर सॉइल द टॉपमोस्ट लेयर इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. दिस लेयर इज कॉल्ड ह्यूमस, and humus takes place by the decomposition of plants and animals. It is usually found in dense forest. The land below this is full of sand, soil, small stones, worms and insects. Soil and pieces of bedrock are found below this layer of land. This soil is immature. Further below this layer, the proportion of soil decreases and that of rock increases. This is the layer of bedrock. The main minerals in the soil are derived from these rocks. That is why soil in different regions is different. The color and texture of soil are both determined by the bedrocks. देखो इस पैराग्राफ में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है कि पहले बेडरॉक होते हैं, बेडरॉक के ऊपर लेयर ऑफ सॉइल एंड स्मॉल रॉक्स होता है. ये जो लेयर्स ऑफ लैंड है, देखो ये 5 लेयर्स है, उसके ऊपर लेयर्स ऑफ सॉइल एंड स्मॉल रॉक्स के ऊपर इमेच्योर सॉइल होता है, उसके ऊपर सॉइल और उसके ऊपर ह्यूमस. जैसे कि हमने अभी अभी प्लास्टिक के बॉटल में ये जो एक्सपेरिमेंट किया है, उसकी के तरह से ये लेयर्स ऑफ लैंड फाउंड होते हैं. ओके, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर. द सॉइल ऑन द लैंड इज फॉर्म्ड बाय अ नेचुरल प्रोसेस. ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया होती है. The abiotic components of soil are supplied through the weathering of the bedrock. And first of all, what is the weathering? Weathering means the process by which rock becomes weak. And how it becomes weak? ये कैसे वीक होते हैं, देखो जैसे कि ड्यू टू द हीट, कोल्ड एंड वाटर ऑफ द सन, वाइंड एंड रेन रिस्पेक्टिवली. जैसे कि हीट इन समर सीजन, कोल्ड इन विंटर सीजन एंड वाटर इन रेनी सीजन. इसकी वजह से क्या होता है, बेडरॉक हैपन, बेडरॉक ऑकर्स एंड द बेडरॉक ब्रेक्स डाउन इनटू पीसेस. ये क्या होता है, इनके पीसेस बन जाते हैं. जैसे कि स्टोन, सैंड एंड सॉइल आर फॉर्म्ड फ्रॉम दिस पीसेस. माइक्रोब्स, वर्म्स एंड इंसेक्ट्स आर फाउंड अमंग देम. ऑल्सो सम वर्म्स होते हैं, कुछ माइक्रोब्स होते हैं और इंसेक्ट्स भी इसमें फाउंड होते हैं. रोडेंट्स लाइक माइस एंड रैट्स आर ऑल्सो फाउंड हियर. rodents like mice and rats also found after the weathering of the rocks. The roots of trees growing on the land also help weathering of rocks. जैसे कि ट्रीज की ग्रोथ में जब ट्रीज बढ़ता है तब उसके क्या होता है, उसकी जड़ें भी जमीन के नीचे बढ़ती जाती है और उसकी वजह से weathering of rocks is happened. The process of soil formation is slow and continuous. ये एक ऐसी स्लो प्रोसेस होती है एंड कंटिन्यूस, जो कि होती ही जाती रहती है. इट टेक्स अबाउट 1000 years फॉर अ 25 centimeter थिक लेयर ऑफ मैच्योर सॉइल टू फॉर्म. इट टेक्स अबाउट 1000 years, ये बहुत हजारों साल उसे लग जाते हैं क्या बनने में, 2.5 सेंटीमीटर का थिक लेयर बनने के लिए, किसका, मैच्योर सॉइल बनने के लिए. ओके देखो अब यहाँ पर वी हैव टू सी दैट
Living things use land, water and air available on earth and so does man. Living things कौन से है? Uses. Living things यानी कि हम और लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स ये सब क्या करते हैं? लैंड को, वाटर को और एयर को यूज करते हैं. एंड देखो लैंड ने कितना हिस्सा पार्टिसिपेट किया है, जैसे कि 29%, पोर्टेबल वाटर एंड फ्रेश वाटर 0.3%, यानी कि जो पानी पीने के लिए बचा है सिर्फ 0.3% है. इट इज़ अ वेरी लेस. एंड ऑक्सीजन हैविंग परसेंटेज 21%. Okay, so all living things uses land, portable water and oxygen. Even in the small proportion, the resources shown in the above table are sufficient for all living things. ये कितना लेस प्रोपोर्शन में है फिर भी ये सफिशिएंट है ऑल लिविंग थिंग्स के लिए. और हमें क्या करना है? इसका जतन करना है. जैसे कि हमको लैंड का इरोजन होने से रोकना है, जैसे कि हमें पानी को सेव करना है और ऑक्सीजन को मिलने के लिए हमें एयर पॉल्यूशन को रोकना है. सो रिमेंबर इट, the elements available in nature which fulfill the basic needs of living things are called natural resources. The second is air, water and land are important natural resources. Third is the soil has both biotic and abiotic constituents. Fourth is there are many constituents of air such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide, inert gases, water vapor and dust particles. Fifth is the ozone layer is a protective shell of the earth. And the last is the natural resources should be used carefully and sparingly. हमें क्या करना है? एयर, वाटर एंड लैंड है, इसको हमें बहुत केयरफुली जतन करना है. हमें हमारी लिविंग लाइफ के लिए ये बहुत इसेंशियल है. सो वी हैव टू सेव द लैंड, वाटर एंड एयर. इट इज़ आवर नेचुरल रिसोर्सेज. ओके एंड थैंक यू.